آپ سبھی کو میری طرف سے سلام، اور میں خدا کا خادم ہوتا ہوا، اس کا مبلغ ہوتا ہوا، میں آپ سب مسیح بہن بھائیوں کو اور غیر مذہب کے بہن بھائیوں کو سلام عرض کرتا ہوں۔ اے میرے عزیزو، جب کہ آج جس مقصد کے لیے میں آپ کے درمیان موجود ہوں، وہ میرا مقصد ہے خدا کی خوشخبری کو آپ کے درمیان لانا، خدا کی خوشخبری کو آپ کے اندر پریچ کرنا، خدا کے حکامات کو، خدا کے سارے وعدوں کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا۔ میرے عزیزو، آج میرے عزیزو، یہ خوشخبری اکیلے میں نہیں پریچ کروں گا، بلکہ آپ بھی اس خوشخبری میں میرے ساتھ شریک ہوں کے ہم مل کے اس خوشخبری کو پریچ کریں گے۔ میرے عزیزو، جب کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر بہت سے لمحات دیکھے ہوں گے، بہت سے خادمین دیکھے ہوں گے جو کہ خوشخبری خدا کی کرنے کے لیے دن اور رات اس کی منادی کرنے میں مصروف ہیں، لیکن آج آپ خدا کی منادی کو دیکھیں گے۔ آج میرا ایمان ہے کہ جو اس کلام کو سن رہا ہے یا جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، آج اس خوشخبری کے وسیلہ سے وہ میرے مسیح کو جانیں گے۔ کیونکہ اگر آپ نے کبھی مسیح کا نام نہیں سنا، اس کا کلام اگر آپ نے نہیں سنا، تو آج آپ اس کے کلام کو، اس کے الفاظوں کو سنیں گے اور یو ول بی چینج، کیونکہ ہمارا یسوع اس دنیا کو گناہوں کی دلدل سے نکالنے آیا، چینج کرنے آیا، بدلنے آیا۔ آج میرا یسوع آپ کو بدلے گا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے خون کے بغیر معافی نہیں۔ خون جو بھی آج اپنے اوپر مانگے گا اور میرے یسوع کو جو بھی ایکسیپٹ کرے گا سچے دل سے، وہ میرے ساتھ خوشخبری کی منادی کرے گا۔ اے میرے عزیزو، جب کہ میں آپ کے سامنے افسیوں اس کا 3 باب اور اس کی 6 سے لے کے 9 آیات کی آپ کے ساتھ تلاوت کروں گا آپ کے سامنے، اور کلام میں یوں مرقوم ہے، یعنی یہ کہ مسیح یسوع میں غیر قوم میں خوشخبری کے وسیلہ سے میراث میں شریک اور بدن میں شامل اور وعدے میں داخل ہے، اور خدا کے اس فضل کی بخشش سے جو اس کی قدرت کی تاثیر سے مجھ پر ہوا، میں اس خوشخبری کا خادم بنا۔ مجھ پر جو سب مقدسوں میں چھوٹے سے چھوٹا ہو، یہ فضل ہو کہ میں غیر قوموں کو مسیح کی بے قیاس دولت کی خوشخبری دوں، اور سب پر یہ بات روشن کروں کہ جو بیت ازل سے سب چیزوں کے پیدا کرنے والے خدا میں پوشیدہ رہا، اس کا کیا انتظام ہے۔ پریز دی لارڈ۔ میرے عزیزو، میرا ایمان ہے کہ اس خوشخبری کو آپ نے پولس رسول کی کتاب کے ذریعے، اس کے لکھے ہوئے الفاظوں کے ذریعے، خدا کے الہام کے ذریعے اس نے اس باتوں کو قلم بند کیا۔ میرے عزیزو، میں آپ کو آج اس بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب پولس رسول نے افسیوں کے نام کو، افسیوں کی کلیسیا کو خط لکھا، تو میرے عزیزو، افسیوں کی کلیسیا یہ نہیں جانتی تھی کہ یسوع کی خوشخبری کیسے کی جاتی ہے، یسوع مسیح کو کیسے جلال دیا جاتا ہے۔ لیکن جب اس کے مبلغ، اس کے نبی نے جب اس باتوں کو قلم بند کیا، تو میرے عزیزو، میرا ایمان ہے کہ وہ لوگ بھی سمجھے ہوں گے کہ میرے مسیح کی خوشخبری کس طرح کی جاتی ہے۔ میرے عزیزو، کلام کے اندر موجود ہے کہ ہماری خوشخبری، ہمارا کلام بائبل مقدس، یہ جسٹ مسیحیوں کے لیے نہیں ہے، یہ غیر مذہب کے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ جب
वो हमारे यीशु अलमसीह के ऊपर, खुदा के इकलौते बेटे के ऊपर ईमान लाएंगे तो वो भी किंगडम के अंदर दाखिल होंगे, आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे। क्योंकि ये वादा ना तो क्रिश्चियन से किया बल्कि गैर मसीहों से भी किया, और वादा था कि उसकी खुशखबरी में दाखिल होना, उसके बदन में शरीक होना, उसको अपना बना लेना, उससे लिपट जाना, उसको अपने अंदर उसको वेलकम कहना। मेरे अजीजों, जब हम उसके बेत को जानते हैं, जब हम उसके अल्फाजों को जानते हैं, ना कि हम पुरानी जिंदगी में कायम रहते, बल्कि हम पुरानी जिंदगी के ऊपर गलबा पा जाते हैं, यानी उसको शिकस्त दे देते हैं, यानी हम गुनाहों वाली जिंदगी को शिकस्त दे के हम न्यू और नई जिंदगी में एंटर होते, यानी न्यू बॉर्न कलीसिया कहलाते, न्यू बॉर्न शख्स कहलाते, न्यू बॉर्न पर्सन कहलाते हैं। जब हम अपने यीशु को एक्सेप्ट करेंगे, जब आप मेरे यीशु को एक्सेप्ट करेंगे तो आप नए हो जाएंगे, आप तब्दील हो जाएंगे, क्योंकि मेरा यीशु आपको चेंज कर डालेगा। और यू विल बी सी आफ्टर, इसके बाद आप देखोगे कि आप यीशु को महसूस करोगे अपनी ज़िंदगी के अंदर कि यीशु क्या है। मेरे अजीज़ों, बहुत ही अच्छी बात करता है कि उसकी खुशखबरी, उसकी खुशखबरी को जो भी ईमान से अपने अंदर लाता है, उसके किंगडम को अपने अंदर लाता है, तो मेरा यीशु मसीह फरमाता है कि वो उसके बदन में शरीक है, उसका बदन उसके लिए बहा। अगर वो इस चीज़ के ऊपर ईमान लाता है तो मेरा यीशु उसको चेंज करेगा, उसको बदलेगा, और वो देखेगा कि मेरी ज़िंदगी में रिवाइवल आ रहा है, मेरे ख़ानदान की ज़िंदगी बिल्कुल चेंज है। मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह बहुत अच्छी बात पौलुस रसूल के ज़रिए हमें मिलती है कि वो कहता है, मैं इस खुशखबरी का खादम बना, मुझ पर जो सब मुक़द्दसों में से छोटे से छोटा हो, ये फजल हो कि मैं गैर कौमों को मसीह की बेक्यास दौलत की खुशखबरी दूं, और सब पर यह बात रोशन करूं कि जो बेत अज़ल से सब चीज़ों के पैदा करने वाले खुदा में पोशीदा रहा, उसका क्या इंतज़ाम है। मेरे अजीज़ों, आज मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आज आप मुझे बताएं कि वो कौन सा अज़ली बेत था जो कि खुदा के अंदर पोशीदा था, जो कि खुदा के साथ शुरू ही से था। तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि वो बेत जब आप कलाम मुक़द्दस के अंदर ढूंढेंगे तो वो आपको यीशु मसीह की सूरत में मिलेगा, उसके मुजस्सम हुए बेटे के ज़रिए मिलेगा, उसके इकलौते बेटे के ज़रिए मिलेगा, क्योंकि वही इस दुनिया में आया, वही इस दुनिया पर फतह उसने पाई और गुनाहों को उसने शिकस्त दी और इब्लीस के ऊपर उसने गलबा पाया, और वो अब खुदा के पास चला गया है, खुदा के साथ उस तख्त पर चला गया है जहाँ पर हम इस खुशखबरी के वसीला से जाएंगे। इस खुशखबरी के वसीला से हम जब अपने खुदा के लहू को, उसके खून को अपने ऊपर मांगेंगे तो परमेश्वर आपको जिंदगी देगा, परमेश्वर आपको चंगाई देगा। मैं उसका अदास होता हुआ, उसका मुबल्लिग होता हुआ आपको इस बात के बारे में बताना चाहता हूँ कि वो बेत जो अज़ल से खुदा में पोशीदा था वो यीशु मसीह था, जो कि हमें न्यू टेस्टामेंट के अंदर मिलता है कि वो बेत माँ मरियम के ऊपर जाहिर होता है और वो हामला होती है
और वो यीशु मसीह को जन्म देती है, और वही हमारा मुक्ति दाता बनता है, वही हमारी जिंदगी बनता है, वही हमारी निजात बनता है, वही हमारा बादशाह बनता है। कलाम के अंदर लिखा है कि उस बादशाह को लोगों ने जलील किया, उसको मारा, कूटा, संसार किया, लेकिन उसी बादशाह ने जब तीसरे दिन मुर्दों के अंदर से जिंदा होकर दिखा दिया कि मेरे से अव्वल कोई नहीं है, इसलिए तो वो कहता था कौन है जो मुझ पे गुनाह साबित करता है, क्योंकि वो गुनाहगार नहीं था, वो खुदा का इकलौता बेटा था, क्योंकि वो रूहुल कुदस की कुदरत से पैदा हुआ था, और वो ना तो मट्टी से बनाया था बल्कि वो रूहुल कुदस की कुदरत से बना था, इसलिए तो उसे कब्र भी ना रख सकी, इसलिए तो कब्र भी हिल गई, इसलिए तो हैकल का पर्दा दो हिस्से बट गया, फट के। इसी तरह मेरा यीशु जब सूली चढ़ा तो उसने जब तमाम किया तो उसका मतलब था कि उसने सारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए हैं। अब शैतान पर वो मुकम्मल तौर से गालिब है, अब शैतान को वो शिकस्त दे गया है, अब शैतान हमें गुमराह नहीं कर सकता, अब शैतान हमसे बहुत दूर है। अगर वो हमारे करीब आना चाहे तो वो नहीं आ सकता, क्योंकि अब जब हम दुआ में झुकते हैं तो हम जब दुआ करते हैं कि ऐ यीशु मुझे चेंज कर, तो मेरा ईमान है कि यीशु हमें चेंज करेगा। लेकिन आप अपने दिल में दुआ करें, क्या आप मेरे यीशु के करीब हैं या नहीं? यीशु आपको चेंज करेगा। जीसस विल बी चेंज यू, क्योंकि उसने आपको बनाया है अपनी छवि के ऊपर, और इसलिए वो कहता है मैं इस खुशखबरी का खादम बनता हूँ, मैं इस गुड न्यूज़ का खादम बनता हूँ। और जो भी इस खुशखबरी का खादम बना है वो मेरे यीशु को प्रीच करता रहा है, वो मेरे यीशु के लिए कोड़े खाता रहा है, वो मेरे यीशु के लिए संसार किया गया है। और आज मेरे अजीजों, आज भी अगर आप बदलेंगे नहीं, उसकी खुशखबरी को सुनने के बाद भी अगर आप चेंज नहीं होंगे, तो यीशु मेरा आपके ऊपर से हाथ उठा दे। मुझे नहीं पता आप कौन से मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं या आप कहाँ रहते हैं, लेकिन अगर आप ये मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो ये आपके लिए है मेरे भाई, मेरी बहन। यीशु आपको चाहता है, क्योंकि उसने हमारे लिए कफ़ारा दिया है। कफ़ारे के बगैर नजात नहीं है, खून के बगैर मुआफ़ी नहीं है। खुदावंद आपको बदलेगा। और आज आप भी कहें कि मैं भी इस खुशखबरी का खादम हूँ, मैं भी खुदा की खुशखबरी का खादम हूँ, मैं भी खुदा के बेटे यीशु मसीह की खुशखबरी का खादम हूँ। तो जीसस का ब्लड आप जब अपने ऊपर मांगेंगे तो वो आपको चेंज करेगा, क्योंकि यीशु का खून हमें सब चीज़ों से पाक करता है, चाहे वो गुनाह की सूरत में है, चाहे वो ज़िनाकारी की सूरत में है, चाहे वो मुख्तलिफ चेंज करने के लिए। हम अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया जीसस। जिंदा पाक खुदा, मैं बड़ी आजिज़ी, इंकसारी, हलीमी, फरोतनी के साथ अब आप तेरा आगे झुकता हूँ कि अब आप इस वक्त जब मैं इनसे कलाम कर रहा हूँ तो आज ये कलाम इनके अंदर उतरे, ताकि ये चेंज हो, ये बदलें, ये यीशु को जाने, ये मसीह के करीब हो। क्योंकि अब आप ऐसा ना हो कि ये तुझसे दूर किए जाए, ये तुझसे अलग किए जाए, बल्कि इन्हों को टच कर, छू और चेंज कर,
کیونکہ تو جلالی خدا ہے، تو چینج کرنے والا خدا ہے۔ اس لیے آج تیری خوشخبری نے نہ کہ ہمیں بدلا ہے، بلکہ تو نے ہمیں اپنی صورت میں اور اپنے نور سے بھرپور کر دیا ہے، تاکہ ہم ابلیس کے اوپر غالب آ سکیں اور تیرے جلال کی باتوں کو پھیلا سکیں۔ یسوع کے نام